God bless you. Today we will discuss about the second point of the general characteristics of transition elements, melting and boiling points. Transition elements have high melting and boiling point due to strong binding forces present between their atoms. Strong binding forces, it means strong metallic forces, strong metallic bonding. Strong metallic bonding is due to the unpaired of electrons. You see in a picture, unpaired of electron from left to right in a period, the scandium to the zinc. Unpaired of electron increases from chromium, manganese, and after chromium the unpaired of electron is decreases. So in trend of the in a period, the melting and boiling point increases from scandium to the vanadium, scandium to the vanadium, and chromium is also increases, but after chromium and manganese have low melting and boiling point due to their structure changes. So the melting and boiling point is lower. In case of iron to the zinc, the melting and boiling point is decreases because the paired of electron increases. So the iron to the zinc melting and boiling point is decreases. Move to the third series of the transition element, lanthanides to tungsten. The melting and boiling point increases because the unpaired of electron increases. Tungsten to mercury, the melting and boiling point is decreases because the paired of electron increases. Okay, you understand कि हमारे पास जितने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके दरमियान में क्या है कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस होंगे, और बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और उनको टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनको हाई रखना पड़ेगा. लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही हमारे पास उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होने की एबिलिटी क्या हो रही है, लो हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इन केस ऑफ द स्कैंडियम टू द क्रोमियम हमारे पास क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है. इट्स मीन हमारे पास उसमें unpaired of electron increase हो रहे हैं. So the melting and boiling point increases. इन केस ऑफ द मैंगनीज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास बहुत लो है. आयरन टू जिंक हमारे पास क्या है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है बिकॉज द पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. सो द आयरन टू द जिंक बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डिक्रीजेस. Third point, covalent radii and ionic radii. In ionic radii, you see the variable trend. Sharply decrease, sharply increases, then decreases, and then normally increase. Because the same charge ion present. Because same charge ion present, calcium contain 2 positive, titanium contain 2 positive, chromium contain 2 positive, manganese contain 2 positive ions. It means same charged ions present, attraction forces allow a huge gap between the attraction forces. So the atomic size in the form of the ion is variable show. तो उनकी वजह से इनके क्या हो रही है कि आयनिक रेडियाई हमारे पास क्या हो रही है, इनकी
वेरिएबिलिटी इनकी शो हो रही है कि टाइटेनियम से जो है वनेडियम तक हमारे पास जो है एटॉमिक आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, दैन मैंगनीज तक हमारे पास इंक्रीज, आयरन टू द जिंक नॉर्मली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सेम चार्जेस की वजह से इनका हम ट्रेंड इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। Next, move to the covalent radii. In a covalent radii, a proper trend is shown. First of all, scandium to the vanadium, covalent radii decreases. After vanadium to the iron, covalent radii is decreases but at a constant point. But after iron to the zinc, covalent radii increases. In case of the scandium to the vanadium, atomic number increases in a period from left to right. Atomic number increases, same shell atomic number increases, nuclear charge increases. Due to nuclear charge increase, the attraction increases, electron cloud shrink. इट्स मीन कि जो हमारे पास शेल है वो क्या होना शुरू हो जाता है, उसका रेडियस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज द न्यूक्लियस इंट्रैक्शन इंक्रीज, सो द कोवलेंट radii decreases from scandium to the vanadium. Vanadium to the iron atomic number increases but the constant way. But iron to the zinc covalent radii increases due to shielding effect. Due to shielding effect in iron electronic configuration D block. ये यहाँ पर मैंने डी ब्लॉक की शो की है 3D की, कि उसमें हमारे पास क्या है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन आयरन टू कोबाल्ट हमारे पास क्या हो रहे हैं कि पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस हो रहे हैं। आयरन में 1 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में, और कोबाल्ट में हमारे पास क्या होंगे 2 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकल में हमारे पास 3 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर में हमारे पास 4 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड at the end of zinc all D block is paired, all D block is filled, so the covalent radii is increases. It's mean shielding effect increases. Paired of electron हमारे पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन क्रिएट हो रही है। पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। उसकी वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर इंट्रैक्शन जो है वो वीक हो रही है, और हमारे पास जो है न्यूक्लियर रेडियाई जो है वो क्या हो जाएगा, कोवलेंट रेडियाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, सेम हमारे पास सिंपल बात है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इट्स मीन कि इस जो से पॉइंट में हमने ये पढ़ा है कि आयनिक रेडियाई जो है उसका एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें क्या है कि सेम आइंस के हमारे पास सेम चार्जेस के आइंस प्रेजेंट है। इन केस ऑफ द कोवलेंट रेडियाई हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेंड है कि पहले स्कैंडियम टू वनेडियम डिक्रीज हो रहा है, और वो किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट्स मीन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उनके दरमियान में अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास कोवलेंट रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वनेडियम टू आयरन हमारे पास क्या है, मैंगनीज तक हमारे पास एक कांस्टेंट रेंज आ रही है। आयरन टू जिंक हमारे पास इंक्रीज क्यों हो रहा है कोवलेंट रेडियाई, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज द पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, आयरन टू कोबाल्ट, कोबाल्ट टू जिंक, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि वहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, और न्यूक्लियर जो हमारे पास है अट्रैक्शन वो क्या हो रही है, वीक हो रही है। पैरामैग्नेटिज्म दो सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, and dimagnetism substances weakly attract and weakly repelled by a strong magnetic field. Most important short question. In paramagnetism, discuss about ions, not a neutral atom. पैरामैग्नेटिज्म में हम किसको डिस्कस करेंगे, आइंस को डिस्कस करेंगे। इट्स मीन
Scandium 3 positive ions, titanium 3 positive ions, chromium 3 positive, manganese 2 positive, iron 3 positive, Fe 2 positive ions. इट्स मीन आइंस डिस्कशन होगी, न्यूट्रल एटम की डिस्कशन नहीं होगी. Scandium 3 positive. Why you write here scandium 3 positive? Because 4s present of two electrons in a 4s are used in a binding, and the third unpaired electron is also used. So the scandium lose 3 electrons. The oxidation is 3 positive. It means unpaired of electron 0. Titanium 3 positive because for 2 electrons of 4s orbital and 1 electron of a 3d orbital used in a binding. So the titanium 3 positive ion and 1 unpaired electrons. Vanadium 2 unpaired electrons, chromium 3 unpaired electrons, manganese 4 unpaired electrons. Manganese 2 positive and 5 unpaired electrons. Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव हमारे पास क्या है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इट्स मीन इन केस ऑफ द मैंगनीज 3 पॉजिटिव द 2 electrons of 4s and 1 electron of d orbital are used for binding. In case of the manganese 2 positive, just 2 electrons of the 4s are used in a binding process, and the d orbital are not used. So the 5 unpaired electron is present. In the same case of iron 3 positive, iron 2 positive, cobalt 2 positive, lose of electron. They lose of electron from 4s and d orbitals. पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसकी वजह से ये हमारे पास हो रही है? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है. इट्स मीन कि स्कैंडियम टू हम टाइटेनियम से वनेडियम जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे इन अ पीरियड, तो हमारे पास क्या हो रहे हैं? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं. लेकिन मैंगनीज के बाद जो सा है आयरन में जाकर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं. पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि हमारे पास इन द जिंक हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑल जो से डी ब्लॉक एलिमेंट्स तमाम के तमाम क्या हैं? पेयर्ड फॉर्म में, जिसकी वजह से इनकी जो सी है हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म 0 हो जाएगी. ठीक है. शो इन अ ग्राफ पैरामैग्नेटिज्म इन अ स्कैंडियम इज 0 and zinc is also 0. In the manganese 2 positive and iron 3 positive, maximum paramagnetism. Maximum. It's mean कि unpaired of electron is high at this point. Oxidation state. One of the most important property of the transition element is the fact that they exhibit variable valency or oxidation state. Variable valency and oxidation state, they show variable valency because of involvement of unpaired electrons. किसकी वजह से हो रही है? Unpaired of electron. It's mean हमारे तमाम जितने भी all points are based on a unpaired of electrons. ठीक है, present in a d block elements. So because of the involvement of the unpaired of electron in addition to an electron in bond formation, all 3d elements show an oxidation state of +2. तमाम हमारे पास जो से हैं d block elements 3d जो से एलिमेंट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन 222. ये तो मस्ट है तमाम में. क्यों? क्योंकि इनका जो सा 4s है ये तमाम हमारे पास क्या है कि ये लूज़ कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स या बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ रही है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तमाम d ऑर्बिटल्स में. नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर 3d का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो इट्स मीन इसकी जो सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3. स्कैंडियम की 2 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं अगर इफ़ 4s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग then +2, and if 3d is also participating in binding then 3 positive. In the case of the titanium
if two electrons of the 4s orbital participate for the binding, the oxidation state is +2. If one electron, this one electron is participate of the 3d orbital participate for the binding, then the oxidation state is +3. And if the 3d orbitals both electron are participate in binding, so the 4 oxidation state. So in the case of the manganese, 2 4s and 2 4s, third 3d 1 electron, 3d second electron 4 oxidation state, 3d third electron if participate in a binding, then oxidation state is 5. And if all d orbitals electron participate in a binding, so the oxidation state is 7. सिंपल वर्डिंग में मैं ये कह रही हूँ आपको कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 4s के इलेक्ट्रॉन सिर्फ जस्ट पार्टिसिपेट करेंगे बाइंडिंग में, तो देन हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगर 3d के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी. Then move to the left to right, scandium to titanium, titanium to vanadium, chromium, manganese. The oxidation state level is increases. Highest maximum oxidation state of the manganese 7, क्योंकि इसमें क्या हो रही है कि 4s के भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3d के भी तमाम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी के साथ बॉन्ड बनाने में या फिर अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में, जिसकी वजह से इनमें क्या हो रही है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है. इसी तरह हम जब टॉप टू लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास एट द एंड जिंक में हमारे पास क्या हो जाएगी, जिंक में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 आ जाएगी. ठीक है, इट्स मीन हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगी. मैक्सिमम इंक्रीज़ कितनी होगी, 7, और उसके बाद फिर क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. और वो सब किसकी बेस पर हो रही है, अनपेयर्ड और पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर. अनपेयर्ड होंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी.